Good morning, students. Welcome back to SST class of 7th. Children, in our previous video, we were studying chapter number 6 of history, that is towns, traders and craftsmen. Okay, so in my previous video, I had told you about the various types of towns found during the medieval period. Okay, what are towns, how towns developed and the types of towns. Okay children, now today we will be studying about the important business communities. Okay, so children, open page number 66. Important business communities. Traders and craftsmen were important business community. ठीक है, जो ट्रेडर्स थे और जो क्राफ्ट्समैन थे वो बिजनेस कम्युनिटी का इम्पोर्टेंट हिस्सा थे. There were mainly two kinds of traders. As you can see on the board, the traders were of two types, big traders and small traders. The big traders were rich and owned ships and boats and even traded abroad. जो रिच ट्रेडर्स थे उनके पास अपनी शिप थी, बोट थी, and they were very rich and even they traded abroad, बाहर भी ट्रेड करते थे. The small traders operated locally in utility products. और जो small traders थे वो locally ट्रेड करते थे और यूटिलिटी जो ज़रूरत की चीज़ें थी जैसे कि स्पाइसेस, क्लॉथ और क्राफ्ट्स पे ट्रेड करते थे. Craftsmen were patronized by the Mughals who even encouraged the master craftsmen to conduct workshops to train the people. और जो craftsmen थे उनको पैट्रनाइज किया जाता था, उनको और इनकरेज किया जाता था मुगल्स द्वारा ताकि वो क्या कहते हैं क्राफ्ट्स को और बढ़ावा दे और उनके लिए वर्कशॉप यानी कि कारखाने भी डेवलप किए जाते थे ताकि वो दूसरों को भी वो चीज़ें क्राफ्ट सिखा सके. ट्रेडर्स फॉर्म गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. और ट्रेडर्स क्या बनाते थे? गिल्ड. आप पहले भी पढ़ चुके. गिल्ड इज अ टाइप ऑफ बिजनेस एसोसिएशन. Okay, these guilds laid down rules for its members to streamline policies and regulations for the benefit of all. और इस गिल्ड में क्या थे? कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने थे ट्रेडर्स के लिए जिसको उनको फॉलो करना था और वो उनके बेनिफिट के लिए था. राइट नाउ ट्रेडर्स यूजुअली ट्रैवल्ड टुगेदर इन लार्ज caravans. और जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, वो यूजुअली लार्ज caravan मतलब क्या? कारवां. जो वन प्लेस टू अनदर दे मूव करते थे. कारवां मतलब टेंट्स में रहते थे. ओके, द मंजारास वेर ए ट्रेडिंग ग्रुप दैट ट्रेडेड इन फूड स्टफ्स. और जो मंजारास थे वो क्या थे? ये भी एक ट्रेडिंग ग्रुप थे जो कि फूड स्टफ खाने पीने की चीजों में बिजनेस करते थे. दे जनरली मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और वो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे. स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स. स्पाइसेस मीन्स मसाले एंड टेक्सटाइल्स मीन्स रिलेटेड टू क्लोथ्स were the most important items of trade. ठीक, दो चीजों का व्यापार बहुत होता था, spices and textiles, right? These were exported to traders on the ports of Red Sea, Persian Gulf, Southeast Asia and China. और जो ये भी चीजें थी वो कहाँ कहाँ ट्रेड की जाती थी? रेड सी में, पर्शियन गल्फ में, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. ओके, नाउ दिस वाज अबाउट द ट्रेड. सो ट्रेड was an important part और उसके दो communities थे, traders and craftsmen. And traders were divided into two groups, that is big traders and small traders. Big traders were rich and small traders were locally selling the products, and they used to sell mainly two products, that is spices and textiles. Okay, now the important towns. Some of the important towns were Hampi, Surat and Masulipatam या मछलीपट्टनम. Okay, let's study about them. The famous city of Hampi was the capital of the kingdom of Vijayanagar Empire. जो हम्पी था वो विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था. A spectacular city with magnificent forts and beautiful temples. और ये टेम्पल में बहुत ही स्पेक्टिकुलर देखने लायक फोर्ट किले होते थे और मैग्निफिशेंट ग्रैंड टेम्पल्स थे. Hampi was also strategically located. It was protected by river Tungabhadra in north and rocky granite ridges on the other three sides. तो इसको ऐसे बसाया गया था कि ये चारों तरफ से प्रोटेक्टेड था. नॉर्थ में ये रिवर तुंगभद्रा से प्रोटेक्टेड था और बाकी तीनों साइड से रॉकी ग्रेनाइट थे जिससे कि वो उसको प्रोटेक्ट करते थे.
The ruins of Hampi tell us the story of lost splendor and fabulous wealth. और अगर हम ruins जो बचे हुए हम्पी के बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको देख के हमें पता चलता है कि हम्पी वॉज ए मैग्निफिसेंट सिटी एंड फुल ऑफ वेल्थ, फैबुलस वेल्थ, वहाँ काफ़ी पैसा था. The city was planned in such a way that it was protected by the forts. और सिटी को इस तरह से प्लान किया गया था कि वो चारों तरफ से किले से प्रोटेक्ट था. आउटलाइन फील्ड्स और 20 किलोमीटर लॉन्ग वाटर चैनल, फिर बड़ा सा चैनल था, नहर था जो कि प्रोटेक्ट करता था, जो कि उनको अटैक से बचाता था, डिफेंस के रूप में उनको काम करता था. राइट. द हम्पी आर्किटेक्चर वॉज डिस्टिंक्टिव. जो हम्पी का आर्किटेक्चर था दैट वॉज वेरी डिस्टिंक्टिव, एकदम अलग और यूनिक था. हम्पी एंजॉयड इट्स प्राइम पोजिशन ड्यूरिंग द 15th and 16th century. Okay. It was a hub of cultural and commercial activities. So during the 15th and 16th century, Hampi became an important town and was a center of cultural and commercial activities, right? Hampi was an important cotton and spice trade center. तो हम्पी एक बहुत ही important town था जो कि spices में और cotton में trade करता था. Traders from Persia, Arabia, Burma, China and numerous islands in the Indian Ocean visited Hampi to trade. तो अलग अलग traders पर्शिया से, चाइना से, अरेबिया से, बर्मा से आते थे हम्पी में trade करने. European merchants also brought cotton and spices from Hampi. और जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने बहुत सारे स्पाइसेस और कॉटन खरीदा हम्पी से. टेम्पल्स were the hub of cultural activities. और जो मैग्निफिसेंट बहुत ही बड़े बड़े टेम्पल्स थे, they were the center of cultural activities. Archaeologists found that the Mahanavami platform where the king received guests and accepted tribute. और आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा पाया है कि जो महानवमी प्लेटफॉर्म, जब महानवमी होता था तो किंग अपने गेस्ट को वहाँ पे एक्सेप्ट करते थे, मिलते थे और ट्रिब्यूट भी देते थे. इन 1565 हम्पी वॉज डिफीटेड बाय द दिल्ली सुल्तान्स. और 1565 में दिल्ली सुल्तान्स ने उनको डिफीट किया. इट वॉज फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स दैट हम्पी फेल इनटू ruins. और उसके बाद से हम्पी का फॉल डाउन होने लगा. ओके. नाउ द सेकेंड वन इज सूरत, दैट इज इन गुजरात. राइट. सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ताप्ती. सूरत ताप्ती रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है. During the medieval times, Surat was an important port as well as trading town. और medieval period में ये बहुत ही important port था, बंदरगाह था और साथ ही साथ trading town था. As a result of its strategic position, it became the great way for trade in West Asia via the Gulf of Hormuz. सूरत became a very important मुगल ट्रेडिंग पोर्ट. और उसके बाद सूरत जो हो गया वो मुगल ट्रेडिंग पोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट टाउन हो गया. इट ऑल्सो बिकेम ए मेजर ओवरलैंड रूट फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली. और आगरा से दिल्ली का ये मेजर रूट भी था. सूरत वॉज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड देयरफॉर बिकेम ए मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स अलॉन्ग विद इंडिगो एंड अदर प्रोडक्ट्स. और अभी भी सूरत में आप जाएंगे तो सूरत इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल. ये अपने कपड़ों के लिए बहुत ही फेमस है. राइट. द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेडिंग फैक्ट्री इन सूरत इन 1612. द डच ओपन द ट्रेडिंग फैक्ट्री फॉलोड बाय द फ्रेंच इन 1664. तो डच ने और ब्रिटिश ने वहाँ पे अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री खोली टेक्सटाइल की. ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड and in 1689 on an average 100 ships from different countries were found to be anchored at the port at any time. और ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने लगा और 1689 में ऐसी कंडीशन आ गई कि इसके पोर्ट के पास 100 से ज़्यादा शिप तो खड़ी ही रहती थी. ओके. नाउ as the trade and commerce flourished, rules were streamlined and offices set up at सूरत. और जैसे जैसे फ्लरिश होने लगा डच और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना ऑफिस वहाँ सेटअप करना शुरू कर दिया. द कस्टम हाउस वेयर ट्रेडर्स पेड देयर टैक्सेस एंड द मिंट वेयर ट्रेडर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एक्सचेंज करेंसी वेयर सम ऑफ द ऑफिसेस सेट अप टू ट्रेड विद द मुगल एम्पायर. ओके. However, सूरत experienced a decline towards the end of the 17th century. और 17th century आते आते सूरत का भी डिक्लिनेशन होने लगा. Many factors were responsible for it.
मराठा लीडर शिवाजी डिस्ट्रॉयड इट इन 1664। तो 1664 में मराठा लीडर शिवाजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया। देन ऑल्सो द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी वर लॉस्ट। उसके बाद मुगल्स ने किया जिससे कि सारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। द पोर्चुगीज बिगैन टू कंट्रोल द सी रूट and there was competition from Bombay, whereas the East India Company shifted its headquarters in 1668. Today सूरत is a major commercial center। और आज के टाइम में सूरत एक बहुत ही कमर्शियल सेंटर है, टाउन है, जहाँ पे टेक्सटाइल का बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होता है। नाउ द थर्ड वन इज मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम was the name of a port town। ठीक, द नेम मीन्स अ फिश पोर्ट टाउन। नाम से ही पता चल रहा है मछलीपट्टनम मीन्स इट्स अ फिश पोर्ट टाउन। ओके, इट इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल ऑन द रिवर कृष्णा। मसूलीपट्टनम was initially founded by the trading Arabs who found their way from the Red Sea to southern India in the 14th century। और जो मसूलीपट्टनम है वो किसके द्वारा पाया गया? ट्रेडिंग जो अरब्स व्यापार के लिए आए थे उनके द्वारा पाया गया, रेड सी से साउदर्न इंडिया में इन द 14th century। Okay, it was towards the end of the 16th century that a new sea link was established between मसूलीपट्टनम and the west। फिर 16th century में एक नया रूट खोजा गया वेस्ट की तरफ से। मसूलीपट्टनम was and still is famous for its कलमकारी वर्क। मसूलीपट्टनम पहले भी और अभी भी कलमकारी के काम के लिए फेमस है। कलम मीन्स अ पेन एंड कारी मीन्स वर्क। ठीक, कलम मीन्स पेन एंड कारी मीन्स वर्क। तो पेन से जो वर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? कलमकारी। साड़ीज एंड क्लॉथ मटेरियल वेर पेंटेड विद द हेल्प ऑफ नेचुरल डाइज विद अ कलम और पेन मेड ऑफ बैम्बू। जो साड़ीज होते थे या जो क्लॉथ मटेरियल होते थे उनमें बैम्बू का, बांस का पेन बनता था जिससे कि पेंट किया जाता था, ड्रॉ किया जाता था। कलमकारी टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड टू द सफाविड एम्पायर इन पर्शिया। और ये पर्शिया में ट्रेड किया जाता था। मसूलीपट्टनम डेवलप्ड एज ए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एंड इन द 17th century इट वॉज ए सिटी ऑफ वीवर्स एंड डायर्स। और ये सिटी किसके लिए था? वीवर्स बुनाई के लिए और डायर्स पेंटर्स के लिए। इट वॉज इन द बिगनिंग ऑफ द 19th century दैट द ट्रेड बिगैन टू डिक्लाइन स्पीडली। और फिर जब जैसे जैसे 19th century स्टार्ट हुआ उनका ट्रेड क्या होने लगा? डिक्लाइन होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा। This city was an important because it was the port of Golconda। और ये क्यों फेमस था? क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था गोलोकोंडा का। गोलोकोंडा माइन्स प्रोड्यूस द लार्जेस्ट डायमंड्स इन द वर्ल्ड। कौन से माइन्स में सबसे ज्यादा डायमंड्स होता है? यस, इट इज द गोलोकोंडा माइन्स। मसूलीपट्टनम was prosperous due to this trade of diamonds and rubies। और यहाँ पे रूबीज का ट्रेड होता था, डायमंड्स का, जेम्स का ट्रेड होता था, जिसके कारण ये जो टाउन था बहुत ही क्या हो गया? रिच हो गया। मसूलीपट्टनम लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस व्हेन बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास बिकेम ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑफ यूरोपियंस। और जैसे ही मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आया, उस टाइम बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास था, तो धीरे धीरे उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई। ओके, नाउ न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। कुछ नए टाउन्स डेवलप हुए और कुछ नए ट्रेडर्स डेवलप हुए। Spices and textiles of India attracted the Europeans during the 16th and 17th century। तो इंडिया के जो स्पाइसेस थे, टेक्सटाइल्स थे, उन्होंने यूरोपियंस को बहुत अट्रैक्ट किया 16th और 17th सेंचुरी में। The English, the Dutch and the French governments wanted to expand their commercial activities in the East and with the help of their superior naval power। और जो इंग्लिश पीपल थे, जो डच पीपल थे, जो फ्रेंच पीपल थे, वो सब अपना इंडिया में अपना रूल चाहते थे बाय डेवलपिंग देयर नेवल पावर। सी रूट के द्वारा वो अपना पावर डेवलप करना चाहते थे। ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ टेक्सटाइल्स देयर वाज अ सडन इंक्रीज इन पीपल हु टुक अप क्राफ्ट सच एज स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग एंड डाइंग। और जैसे ही टेक्सटाइल का डिमांड बढ़ा अदर कंट्रीज में, वैसे ही इंडिया में कई सारे बिजनेस स्टार्ट हो गए, जैसे कि स्पिनिंग, ठीक, देन वीविंग, बुनाई का काम हो गया, ब्लीचिंग, कलरिंग का काम हो गया और डाइंग।
On the other hand, this period also witnessed the decline of the independence of craftsmen. साथ ही साथ इस टाइम craftsmen का क्या हो गया, डिक्लाइन होने लगा, as they had to weave cloth as per the demands of the European agents. Okay, now this period also saw the rise of 3 important cities. और इस पीरियड में 3 important cities डेवलप हुई, that is बॉम्बे जिसे अब हम मुंबई कहते हैं, कलकत्ता जिसे अभी हम कोलकाता कहते हैं, and the Madras which is now called as Chennai. Okay, the Europeans set up areas called black towns in cities. और यूरोपियंस ने अपने टाउन्स इस एरियाज में सेट की है जिसका नाम उन्होंने रखा black towns. The craftsmen and artisans were moved into these areas to work and live there. और जो artisans थे, जो workers थे, वो इस एरिया में आते थे और काम करते थे. The Europeans, on the other hand, occupied in the posh residential areas of Fort St. William in Kolkata and Fort St. George in Madras. Okay, so children, this is about the chapter. Our chapter is completed. So children, that's all for today. Today's homework is question number 1. Name the 2 important business communities. Then question number 2. Who were Banjaras? Question number 3. Where is Surat situated? Question number 4. What were the most important items of trade? And question number 5 is, what was Golconda Mines famous for? Children, I hope whatever I have taught you, you have understood it well. Go through the chapter, read it thoroughly, underline the important points and learn and write all the key terms of the chapter. Okay? So children, in my upcoming video, I will be discussing the exercise and question answers of the chapter. Okay? So that's all for today. Take care of yourself. Thank you, class.